Today morning over a cup of tea with Jisha and Sayud Sahaj, we were talking about the forbidden apple. Let me share with you what is the forbidden apple. Adam and Eve, beginning of creation. Adam, Hawa, Adam, Eve, Manu, Satrupa, beginning of creation. God came in the form of a male and female. Adam and Eve, name whatever you may put it. It doesn't really matter. So eternally, they lived eternally in love with each other because love is life, love is God. God came as Adam and Eve and they loved each other. So that means they lived in love. They truly lived, carried on. Eternally means beyond time. Time had not taken birth because when you're in love, time ceases. वक्त ठहर जाता है. गाना भी है ना एक, लाख जालिम हो जमाना मगर इतना भी नहीं, तुम जो बाहों में रहो वक्त ठहर जाता है. वक्त, when you're in love, time stops. Time begins only when you come out of love, when you step out of love. The moment you reposit or retreat back into love, love means God. When you go back into God, there is no time. So time means Kal. Kal means Mrityu. So God wanted to create Kal also now. So he comes, Kal, snake is also Kal Swarupa. इसलिए डर लगता है उसको देख के. स्नेक को देखते ही डर लगता है. देयर इज समथिंग विद इन अस, इनबिल्ट, सांप को देखते ही ऐसे डर लग जाता. सो काल है. सो सांप, snake comes to Adam and Eve. Adam and Eve कालातीत थे. काल आया, बोलता है ये एक एप्पल है, इसको मत खाना. मतलब it creates a द्वंद्व within, a confusion within. क्यों? बाकी तो we are living liberated, They were liberated beings, they were in love. Beyond Kal, Kalatit. But Kal comes and puts a confusion in their mind. ये नहीं करना. ये क्यों नहीं करना? We are liberated beings. ये क्यों नहीं करना? अब काल ने दिमाग में डाल दिया, वो कंफ्यूजन राइज हो गई. स्मृति शास्त्र पुण्य पाप विचार दे. सारी जिंदगी ऐसे ही तो निकलती है और मर भी जाते हैं. हमारे पेरेंट्स भी ऐसे ही मर गए, ग्रैंड पेरेंट्स भी ऐसे ही मर गए. पुण्य पाप विचार दे कि ये ठीक है ये गलत है, उसमें फंस गए. तो उसने बोला कि ये नहीं खाना एप्पल. वेल, ठीक है, दैट वाज अ गेम प्लान. गॉड का गेम प्लान. गॉड कौन था? एडम एंड ईव. एडम एंड ईव वर नॉट सेपरेट फ्रॉम गॉड, दे वर गॉड. काल आ गया, अपने आप ही उन्होंने बना लिया काल. काल ने बोला ये एप्पल नहीं खाना. वेल, एप्पल खाया. उन्होंने बोला खाएंगे, ये फ्री पीपल. सो एप्पल खाया. एप्पल खाते ही क्या हुआ? चेतना. चेतना मीन्स कॉन्शियसनेस. चेतना मीन्स अवेयरनेस ऑफ their liberated self, awareness that we are in love, that immediately forgotten, and it becomes chitta. The heart transformed into head. सिर बन गया, दिमाग डेवलप हो गया. अभी दिमाग डेवलप हो गया तो नाउ तो दिमाग ओनली नोज व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग. ये अच्छा आदमी है, बुरा आदमी, ये मेरा, ये नहीं मेरा, ये दुश्मन, ये सब कुछ ये डेवलप हो गया एकदम. चेतना converted into chitta, and we started living in chitta vritti.
And then Patanjali has to come and say, चित्ता के बियॉन्ड जाके भी देखो ना वापस वहीं जहां से तुम आए थे. वो एप्पल खाने से पहले जैसे थे वैसे बन जाओ. तो देन यू विल बी बैक अगेन इन लव. वक्त ठहर जाएगा. You will become hot. You become sensitive. You become emotional. You become warm, wet, always enjoying yourself. Life will experience life. दिमाग cannot experience life. Heart can experience life. ये वाला हार्ट तो चलो एक पंप है. मगर neurologically as a doctor, let me tell you, there's a limbic system, in our brain. There is a cortex and there is a limbic system. Cortex is दिमाग. ये ऐसा वैसे जब भी मैं इंटेलेक्चुअल काम करना शुरू कर दूंगा, मैथमेटिक्स के सम शुरू कर दूंगा, द हैप्पीनेस विल गो. माय वाइफ वाज टॉकिंग टू मी सम such intellectual issues. I said, yeah, let me enjoy myself. तुम कर देना सारे काम ना. Because the whole household is in her hands. After all, she is the homemaker. So everything, be it finances, be it all decisions of the family, be it which house, where, how to decorate, it's all in your hands. So why should I spend my intellect? Why should I go to the cortex? Why not live in the limbic system? लिम्बिक सिस्टम. एमिगडला बोलते हैं वर्ड्स. एमिगडला, आमंड टाइप 2 हार्ट्स हैं इसके अंदर, दिमाग के अंदर आमंड के जैसे छोटे छोटे. एमिगडला बोलते हैं. वहां सारी इमोशंस हैं. वो एमिगडला को सुला दिया उस एप्पल ने. बस इंटेलेक्चुअल बन गए हम सब के सब, चाहे आप पढ़े लिखे हो या नहीं हो. But we all consider ourselves to be very intellectual and logical beings. You might be a completely illiterate man. You might be a beggar living in a slum area, but a very intellectual. Everybody is very intellectual. दिल सो गया क्योंकि वो स्नेक ने बता दिया कि ये गलत बात है. Love is something bad. Now you see, love laced with just a pinch of common sense makes this life heaven. Pinch of common sense. You see, I love a prostitute, but with folded hands. This is common sense. There's no need for me to go to a brothel. I can worship the brothel from outside also. I love a snake, but with a pinch of common sense. I mean, I can bow before it. There's no need for me to go and touch the snake. It'll bite me and I'll be killed. So, just a bit of a common sense. Wife must be loved like wife. Daughter must be loved like daughter. Isn't it? So, just a common sense pinch. Rest everything in ocean of love. Get back into your God self. God is love. God is not intellect. God is not understandable thing. God is a lovable experience. And love or amygdala, the two almonds, are sleeping inside because of that forbidden apple. वो forbidden apple खा लिया था हमारे किसी एडम ईव, मतलब ग्रैंड 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 पेरेंट्स ने. वो आज तक वही चल रहा है. उस एप्पल को फेंको बाहर और वापस आ जाओ in your divine loveful state and enjoy life. Enjoy life means experience life within life. Medical living is cortical living. मतलब सांस चल रहा है. हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? जिंदा लाश, ऐसा बोलते हैं शब्द. हम तो जिंदा लाश हैं जब तक भगवान को एक्सपीरियंस नहीं किया. भगवान क्या है? प्रेम. जब तक प्रेम को एक्सपीरियंस नहीं. लव एवरीथिंग, नॉट समथिंग, एवरीथिंग. Turn back into your loveful state. Accept that you are. Adam and Eve were what?
They were gods. Now, what is God? God is love. Don't misinterpret words. Guru Nanak is what? Love. Sri Krishna is what? Love. Buddha is what? Love. In love, he uses a pinch of common sense and carries on eternally. This is what life is. Doctor can only treat your khansi bukhar. A vidwan, a ved, a yogi will infuse life into you. What is life? Love. Get back that loveful self and see how you blossom like a flower. You will be fragrant like a flower. Otherwise, life is miserable. Miserable because without God, without love, कैसे जी रहे हैं? हरे राम. अंदर एक अंदर ही वो दो अमिगडला जो दो क्यों है? बिकॉज दैट इज आत्मा एंड परमात्मा. वो दो मिल जाएंगे ना तो ऐसे हो जाएगा. जिंदगी ऐसे ही, कोई तकरार नहीं, इजहार ही इजहार. नो तकरार with anything that happens in life. No takrar. We have not, we are not born to question. We are not born to object or to accuse. किसने बनाई है जिंदगी? आप ही ने तो बनाई है. क्यों क्यों गलती निकालनी? जो कुछ भी हो रहा है आप ही ने बनाई. और कैसे बनाई? वो एक सांप ने बोला था कि एप्पल खा लो तो जिंदगी बन गई. अभी वो एप्पल को फेंक दो तो आप जिंदगी से परे हो. नाम लेते रहो अपने भगवान का. कृष्णा 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 बोलते रहो. तुम ही जानते हो कि आपका कृष्णा कौन है. कोई भी हो सकता है. ये दुनिया वाले पूछेंगे मुलाकात हुई, क्या बात हुई. ये बात किसी को माना कहना मत. बताना कौन है तुम्हारा कृष्ण. मगर बोलते रहो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर. अपने दिल को ही तो जानते हो ना कि कौन है अल्लाह. कृष्णा को रुक्मिणी ने एक बार सोते हुए राधा का नाम लेते हुए सुन लिया. बहुत बड़ा बवाल उठ गया कि ये कौन हो सकती है राधा. इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई. तो रुक्मिणी ने ढूंढ लिया कि राधा कौन है. एक बार मुंह से बोला गया बस. ऑल्दो राधा एंड कृष्णा आर इनसेपरेबल, बट वो बोलता नहीं है, चुप रहता है. बोलेगा तो रुक्मिणी रुष्ट हो जाएंगी, सत्यभामा रुष्ट हो जाएंगी. सो चुपचाप अपने ही अंदर राधा को याद करता. किसी को नहीं बताता कि राधा कौन है. अभी रुक्मिणी को पता चल गया राधा कोई है जिसको ये याद कर रहा है. वो ढूंढा ढूंढा फिर वो स्टोरी है कि ढूंढ के कैसे वो कहाँ गई और कैसे राधा के दर्शन हुए. यू कैन एक्सप्लोर दैट स्टोरी. सो अपने ही अंदर अपने कृष्णा को, अपने गुरु को वाहे गुरु करते रहा करिए. और अपने आप को वापस अपने अमिगडला को जगा लीजिए. वेक अप द लव इनसाइड यू. इट्स इन योर हैंड्स. ये जो माला जपते हो इससे प्रेम जग जाएगा. और प्रेम जग जाएगा तो बस जिंदगी में जिंदगी आ जाएगी. नहीं तो हम जिंदा लाश हैं. हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा. यही योग है. योग का मतलब मिलन. मैं क्वेश्चन किया करता था इन माई फॉर्मेटिव ईयर्स कि योग का मतलब मिलन. मगर पतंजलि तो कहते हैं चित्तवृत्ति निरोधा. ये दोनों का आपस में तो बड़ा डाइकॉटमी है. कहाँ मिलन, कहाँ चित्तवृत्ति निरोधा. थिंक ऑफ इट. I mean, the author of Yoga Darshan, the Shastra on Yoga, he says yoga is चित्तवृत्ति निरोध. एंड हम कहते हैं योग का मतलब है दो चीजों का मिल जाना.
देखिए, योग का मतलब है आपका और आपके भगवान का, आपके बिलाविड का, दो अमिगडला का मिल जाना, मिलन की मस्ती भरी आंखों में, हजारों सपने सुहाने लिए, फिर तो बस फूल फूल ही खिलते रहते हैं सब जगह। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, हर तरफ निगाह में फूल खिले। एक बार वो जग गए ना दो अमिगडला, तो यू विल बिकम awake, aware, conscious. At this time, you are not conscious. You're only cortically, ये cortex बोलते हैं, दिमाग, intellectually alive. You're not emotionally alive. Emotionally alive in love. So मैं कह रहा था कि योगा means मिलन, but पतंजलि says yoga चित्तवृत्ति निरोधा. What is this? देखिए, जब तक कि आप इंटेलेक्ट हैं, तब तक मिलन संभव ही नहीं है। चित्तवृत्ति निरोधा, चित्त वृत्तियों के परे जाओगे तभी मिलन संभव है। देन यू विल बी नेकेड, नेकेड मीन्स दिमाग के बिना। देन यू विल बी इन मस्ती ऑल द टाइम। दिमाग इज अ पिंच ऑफ कॉमन सेंस ओनली। इतना की चाहिए फॉर एनी वर्क, इतना दिमाग चाहिए बस, बाकी सारा दिल। लिव फ्रॉम द हार्ट एंड ब्लेस योर सेल्फ। उद्धरेत आत्मनात्मानम ना आत्मानम अवसादयेत। आत्मा क्या होती है? दिल। दिल ये वाला नहीं, पंपिंग हार्ट नहीं, दिल जो अंदर बैठा है, दो हंसों का जोड़ा, वो बिछड़ गया रे। जुलम भयो रामा, गजब भयो रे। क्या मिस्ट्री है, वो दो हंस अंदर ही बैठे थे, वो बिखर गए, बिछड़ गए, और हम कैलाश पर्वत पे जाके ढूंढते बैठे। आपके अंदर जो सारी की सारी फिलॉसफी है दुनिया की, उनका एक ही हेडिंग है, टाइटल टेल्स यू एवरीथिंग विच इज इन द बुक। टाइटल इज शारीरिक शास्त्र। शारीरिक शास्त्र, वो कोई ब्रह्मांड की फिलॉसफी नहीं है। आपके बॉडी के को ही एक्सप्लेन करता है कि कहाँ दिल है, कहाँ दिमाग है, कैसे आप मरते हैं, कैसे आप मृत्यु के परे चले जाते हैं। ये सब आप ही के अंदर ही हो रहा है सब कुछ। किसी अमृतसर बाहर नहीं है, कोई मक्का बाहर नहीं है, आप ही के अंदर। मंगल ग्रह बाहर नहीं है, मंगल तो अंदर ही होगा। हरे राम। कब हम ट्रूली इंटेलेक्चुअल हो जाएंगे? जब आप ट्रूली इंटेलेक्चुअल हो जाएंगे, तो फिर आप दिल हो जाएंगे, अमिगडला हो जाएंगे, लिम्बिक सिस्टम को छू लेंगे, आपका वेगल टोन बढ़ जाएगी। ये मेडिकल वर्ड्स हैं, सॉरी। वेगल टोन बढ़ जाएगी, शांति ही शांति, आपको आठवां भाव एक्सपीरियंस हो जाएगा। 9 भाव होते हैं ना, 9 भावों से पर एक 10वां भाव भी होता है, उसको शांत भाव। आप शांत हो जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे, परिपूर्ण हो जाएंगे, पूर्णमासी हो जाएगी। हरे राम, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सारा दिन प्रेम मुदित मन से बोलो, राम राम राम। बिना प्रेम के बोलोगे तो कोई फायदा ही नहीं ना होगा। इट जस्ट मियरली बिकम अ रिचुअल। कोई फायदा नहीं होगा, आप सारी उम्र राम राम बोलते रहेंगे, फिर कोसेंगे कि मैं राम राम तो बोला पर फिर भी मर गए, फिर भी बीमारी हो गई, फिर भी बूढ़े हो गए। ये सब नहीं होगा अगर आप प्रेम से बोलेंगे। हमेशा ही एवर यंग रहेंगे, एवर यंग, मुस्कुराते रहेंगे। ये जो मुस्कुराहट में यूथ है, वो चाहे अब 100 साल के हों तब भी वो यूथ दिखेगा। मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग इन अ मैन इज लव, एंड लव मैनिफेस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्माइल, a genuine natural smile, not a put on. A put on is an effort. थक जाएगा मुंह पुट ऑन से, अंदर तो इतना दुख है और बाहर से मुस्कुराना पड़ रहा है। हाउ मिजरेबल।
life is. Like once a very dear one of mine had asked me, young little boy, कि क्या सारी उम्र ऐसे ही मुस्कुराना पड़ेगा सब मुश्किलों के दुखों के अंदर? अरे नहीं है दुख, कोई मुश्किलें नहीं है, वो तो सांप है जिसने आके आपको एप्पल खिला दिया था, तभी मुश्किलें बन गई सब। अगर वो सांप वो काल को थोड़ा दूर कर दो तो आप कालातीत हो। आनंद ही आनंद है, कोई मृत्यु लोक नहीं है, यही स्वर्ग है। स्वर्ग मीन्स आप ही का अपना, अपनी रियलिटी। स्व मीन्स आप, स्व। आत्मा मरती नहीं, आत्मा जन्म नहीं लेती। आत्मा का मतलब क्या होता है? आत्मा मतलब मैं। अगर मैं आपको कह दूंगा कि मैं जन्म नहीं लेता, मैं मृत्यु को नहीं प्राप्त होता, तो आपको ब्लास्फेमस लगेगा। अरे अपने आप को क्या समझते? ये आत्मा का मतलब ही मैं। आत्मा मीन्स मी। सो आत्मा जन्म नहीं लेती, सच में आप जन्म नहीं लेते हैं सच में। क्यों जन्म ले लिया है? लग रहा है क्योंकि वो काल जो था, सांप था, उसने एप्पल खिला दिया, बस उसके बाद तो सब कुछ ही हो गया। उसके बाद डूज एंड डोंट्स हो गए, शर्म आनी शुरू हो गई, ये लड़का ये लड़की ये वो सब प्रॉब्लम शुरू हो गई। अदरवाइज यू वर लिविंग लिबरेटेड लाइक गॉड, एवर इन लव। हर एक के साथ प्रेम, हर एक के साथ प्रेम, फिर अपना पराया तो खत्म हो गया ना। हर एक के साथ प्रेम मीन्स अपना पराया कैसे हो सकता है कोई? द होल वर्ल्ड इज योर फैमिली देन। जहां पे भी बैठे हो वही आपका होम है। आपको कोई छुट्टी नहीं चाहिए, बिकॉज यू आर ऑलवेज ऑन अ हॉलीडे। आप काम तो कोई करते ही नहीं, आप तो बस प्रेम करते हो, कोई काम नहीं करते। देन यू आर ऑलवेज ऑन अ हॉलीडे, कोई बर्डन नहीं। यू कैन ब्लेस योर सेल्फ। कुछ सीखने वाला नहीं है शास्त्रों में, लेट मी टेल यू। शास्त्र बस इतना ही तो कहेंगे, प्रेम में वापस आ जाओ। और प्रेम और गॉड को अलग मत समझ लेना कभी भी। गॉड इज लव। हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम। सारा दिन कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, बस राम राम बोलते रहिए, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं। बोलने के लिए तो सोचना पड़ेगा कुछ, राम राम करने के लिए कुछ सोचना नहीं पड़ता। और सोचेंगे तो फिर तो दिमाग कॉर्टेक्स जाग जाएगा। सोचिए मुझे मत, कुछ राम 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 राम। जिंदगी बहुत सुंदर है। आप प्रेम से भरिए अपने आप को। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कहीं स्पिरिचुअलिटी को भी एक नॉलेज मत बना लीजिए, मेडिटेशन को एक प्रैक्टिस मत बना लीजिए कि सीखनी है मेडिटेशन। सीखा थोड़ा जा सकता है, प्रेम को क्या सीखना है? क्योंकि आपको पहले ही आता था, वो तो आपने खुद ही वो एप्पल खाया हुआ है, तो प्रॉब्लम हो गई। एप्पल इज विस्मृति, अज्ञान। आप ज्ञानी हैं, हम सब ज्ञानी हैं। अज्ञान का बस एक एप्पल खाया हुआ है थोड़ा सा, फेंक दो उसको, करके फेंक दो, आउट। वापस अपने ही प्रेम में आ जाओ, एंड सी हाउ लाइफ ब्यूटिफुल इज। इट्स वेरी ब्यूटिफुल। हरे राम, हरे कृष्ण। मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, भूल जाओ, कुछ नहीं चाहिए प्रेम के सिवा, कुछ नहीं चाहिए। हरे राम, हरे कृष्ण। बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। हरे राम, हरे